Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with exercise 4.1 which is on page number 74 of our NCERT book chapter number class 6th chapter number 4. So the name of the chapter is basic geometrical ideas. As you can already see that we have done question number 4 of exercise 4.1 in our previous video. So in this video we'll be starting with our next question, question number 5. So question number 5 now. Question number 5 of exercise 4.1 says, draw a rough graph and label suitably in each of the following cases. Okay, so the question says draw a rough graph and label suitably in each of the following cases. मतलब हमें कुछ cases given होंगे, हमें उसमें उसका rough graph draw करना है. Let's see what are the cases. So the first case says point P lies on AB. Point P lies on AB. Point P lies on AB. What does this mean? मतलब कि एक point है P जो lie कर रहा है AB पे, line segment AB पे, ठीक है? So हमें उसका ग्राफ बनाना है, रफ ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. Let's start. ओके, सो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो उसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है. नाउ वी हैव टू मार्क अ पॉइंट पी ऑन ए बी. ए बी पे है मतलब यहाँ पे, वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है. तो सपोज हमें यहाँ पे मार्क करना है. सो दिस इज पॉइंट पी. सो दिस वाज द रफ ग्राफ फॉर पार्ट नंबर ए. दिस वाज वेरी वेरी इजी. Just we have to mark this point P on line segment AB. और ये line segment है, ये कैसे पता चलेगा? With this mark जो ऊपर एक line given है. यहाँ पे कहीं पे भी arrow नहीं है question में, so it means yes, arrow नहीं है कहीं पे भी, it means this is a line segment. ये line segment है, it means end points हैं इसके, तो हम arrow नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है. और point P को हम mark कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, anywhere, right? So this was part number A. Now let's come to second part. X, Y and PQ intersect at M. X, Y and PQ intersect at M. So this is our second part. So this is our second part. X, Y and PQ intersect at M. So if you notice this sign above X, Y and PQ, this is a sign of a line. So it means ये X, Y और PQ जो है ये एक line है and वो दोनों intersect कर रहे हैं. तो intersect मतलब हमें पता ही है that एक point पे वो meet कर रहे हैं और उस point का नाम भी हमें given है point M. So it means we have to make a cross. एक cross बना लो या फिर कुछ ऐसा बना लेते हैं हम, ठीक है. सो एक पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, बस हमें वो पॉइंट एम मेंशन करना है.
सो उस पॉइंट को हम M मेंशन कर देते हैं. नाउ एक्स वाई, ये एक्स वाई लाइन है, सो इट मीन्स दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये पी क्यू, सो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू. सो एक लाइन है एक्स वाई जो मीट कर रही है लाइन पी क्यू को एट एन. So XY line XY and line PQ intersect at M. So this is the rough sketch, or we can say rough graph for B part. I hope B part is also clear. Part number A तो बहुत easy था. Part number B में हमें just intersect का meaning पता होना चाहिए, and हमने intersecting lines का पूरा topic किया है in our introduction video. ठीक है. सो आई होप इंटरसेक्टिंग मीन्स आपको क्लियर है यहाँ पे व्हाट डज इंटरसेक्ट वर्ड मीन्स. तो इंटरसेक्ट कर रहा है इट मीन्स एक पॉइंट पे मीट कर रहा है. सो वो पॉइंट M हमें गिवन है, जस्ट हमने ड्रॉ किया. अब जरूरी नहीं है वो ऐसे ही ड्रॉ होगा, ये ऐसे भी ड्रॉ हो सकता था. ठीक है, ये ऐसे भी ड्रॉ हो सकता था, राइट. सो इट इज अप टू अस हम कैसे उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हमें जस्ट एक रफ ग्राफ बनाना है. ऑल पॉसिबल कंडीशंस, दीज ऑल कंडीशंस आर राइट. So this was the B part. अब A और B part clear है. Please make these graphs in your notebook. Then we'll start with the third part. Okay, so this was the A and the B part. Now let's start with C and D part of this same question, question number 5. So question part number 3, sorry, not question number, we are doing the same question. Part number 3 says line L contains E and F but not D. Line L contains E and F but not D. सो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन एल. उसके बाद ही कुछ और देखेंगे. सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज अ लाइन, लाइन एल. ठीक है ना. लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ. कंटेन्स ई एंड एफ मतलब जो पॉइंट ई और एफ हैं वो लाइन एल पे ही है. इसका मतलब ई और एफ को हम ड्रॉ कर देते हैं एल पे ही. अब ये तो आपको पता है दैट वी कैन ड्रॉ इट एनीवेयर. एफ यहाँ पे भी हो सकता था, ई यहाँ पे एफ, ई यहाँ पे, एनीवेयर. ठीक है, तो ई एफ. अब ये इतना क्लियर है, लाइन एल बन गई, कंटेन कर लिया उसने ई एन एफ भी. अब इस पे आ जाओ, बट नॉट डी. सो एक पॉइंट है डी जो इस लाइन पे नहीं है, ये भी यहाँ पे मेंशन है, बट नॉट डी. सो उस पॉइंट को हम इस लाइन से अलग ड्रॉ कर देंगे. सो दिस इज द डी पॉइंट. सो अब ये क्लियर है, इस सिचुएशन, इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया दैट लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी. ठीक है. सो दिस वाज द रफ स्केच फॉर पार्ट नंबर सी. नाउ विल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट.
Now let's come to our part number D. So I hope this C part is clear to you. Now we are moving on to our D part. So D part says D part says OP and OQ meet at O. OP and OQ and OQ meet at O. So yes, this is our D part. सो ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ. देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि ओ कितनी बार यहाँ पे आ रहा है. ओपी में भी ओ है, ओ क्यू में भी ओ है, और वो मीट भी ओ पे ही कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट डज दिस मीन? ये वाली लाइन में जो ओ है, ये वाली लाइन में जो ओ है, वो दोनों ही एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. राइट. सो सी, लेट्स ड्रॉ. कहीं पे मीट कर रहे हैं, इट मीन्स कुछ क्रॉसिंग में बनेगा. ये भी क्लियर है. तो हमने एक बार दो लाइंस बना दी क्रॉस करती हुई. एंड वी ऑल्सो नो दैट दे आर मीटिंग एट पॉइंट ओ. ठीक है. सो ओपी एंड ओ क्यू, अगर हम इसको पी ले लेते हैं और इसको क्यू ले लेते हैं, सो ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ. सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. सो मतलब दो लाइन ऐसे बनानी है जिसका एक कॉर्नर मीट कर रहा हो, क्योंकि वो वही कॉर्नर है, क्योंकि यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है. सबसे पहले ओ है ओपी में भी और ओक्यू में भी सबसे पहले ओ है. मतलब वही वाला ओ है जो मीट कर रहा है, और वो मीट भी ओ ही है. मीट भी ओ ही है. ठीक है. सो ओपी एंड ओक्यू मीट एट ओ. कुछ ऐसा बनेगा. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. कुछ बच्चे इसको ऐसे बना देंगे. OP and OQ meet at O. OP and OQ meet at O. ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 पॉइंट O मेंशन कर दिया. ये भी O, ये भी O एंड ये भी O. ठीक है. ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है. दिस इज द करेक्ट वे. ठीक है. सो दिस वाज द D पार्ट. दिस वाज पार्ट नंबर D ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. दिस वाज द लास्ट पार्ट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को इसी पार्ट में होता है. ऐसे नहीं बनाना इसको. दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. ठीक है. तो अगर आपने ऐसे बना दिया तो ओ ओ ओ 3 टाइम्स 3 प्लेसेस पे हमने ओ को मेंशन कर दिया. यहाँ पे एक ही प्लेस पे है. देखो यहाँ पे ओपी भी बन गया, ओ क्यू भी बन गया, और वो मीट भी हो गए उसी ओ पे. राइट. So this was part number D of question number 5. I hope this part is clear. Please draw this fast so that we can start with our next question. Okay, so this was the D part. This was the last part of question number 5. With this, we have completed our question number 5 also. Now, I was starting question number 6 in this video only, but it is quite lengthy question. वो true and false question है with more than 10 parts.
ठीक है. सो वो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे. सो दैट विल बी स्टार्टिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो आई एम साइनिंग अप हियर. आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो super soon. Till then, practice each and every question. This D part is an important part. ये भी आप मेंशन कर लेना अपनी नोटबुक में. दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. ठीक है. सो I'll be coming up with a new video. Till then, practice each and every question again. And if you still have any query, you can mention in our comment section. Thank you.